I would like to call all the guests on the stage. I take this opportunity to welcome our today's guests who are also my colleagues, my friends. मैं जो हमारे बीच जो आए हैं ये मेरे फ्रेंड्स हैं और एडवोकेट्स हैं। ये लेडीज़ के लिए एक इंस्पिरेशन है कि हमारे लेडीज़ जो हैं वो हर फील्ड में अपने कदम जमा चुके हैं। आपके सामने जो हैं आयशा जमादार मैडम, इनका मैं वेलकम करता हूं प्राइम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आयशा जमादार ये बॉम्बे हाई कोर्ट प्रैक्टिस करते हैं, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सिविल, क्रिमिनल, ये सारे एडवोकेट जो हैं बॉम्बे हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट, धारवाड़ बेंच, बेंगलोर बेंच, ये सारे जगह पर, और साथ ही साथ में बेलगाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल और क्रिमिनल दोनों में प्रैक्टिस है। तो मैं चाहता हूं कि आप तमाम एक बार ज़ोरदार तालियों से हमारे गेस्ट का वेलकम करें। इसी तरीके से हमारे बीच अफसर जहान सैयद हैं, इनका भी हम प्राइम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से वेलकम करते हैं। इसी तरह से एडवोकेट साक्षी मैडम, ये भी हमारे बीच आज मौजूद हैं। इनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। मैं चाहता हूं कि आज हमारे जो गेस्ट हैं, जो लॉयर्स हैं, उनसे आप इंस्पिरेशन लें, इसलिए मैं आज इनको बुलाया हूं और आपके साथ एक चंद मिनट कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, आप उनको सुने। इसी के साथ में उनके साथ में जो हमारे प्रिंसिपल मैडम है निकत कमलापुर मैडम, प्रिंसिपल प्राइम नर्सरी स्कूल और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर प्राइम एकेडमी, और मकसूरा कमलापुर, ये हमारे सोसाइटी के एक्टिव मेंबर हैं। इनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल और वेलकम करता हूं। आज का जो दिन है ये स्कूल का एनुअल डे नहीं है, इसको हम बोलते हैं पेरेंट्स गैदरिंग। पेरेंट्स गैदरिंग का मतलब क्या है? एक जगह पर जमा होना, कुछ अपने व्यूज़ थॉट्स शेयर करना, एक दूसरे की हेल्प करना, एडवाइस करना, ये भी इसका एक मकसद होता है। तो इसीलिए आज हमारे बीच में जो गेस्ट हैं, मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट सही अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, या फिर उनको कुछ लगता है कि वो हमारे प्री स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ मैसेज दें, और साथ ही साथ में जो प्राइम एकेडमी का जो प्रोजेक्ट है, जो बच्चे हमारे SSLC में कोचिंग ले रहे हैं, उनके लिए भी कुछ अपनी तरफ से एक मैसेज अपने तरफ से जो देना चाहते हैं वो दें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल साक्षी मैडम to come on today and share this. Very good evening to one and all present here. It's an immense pleasure to be present here. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir, for calling us here today and giving this honorable stage, inviting as a guest. Thank you so much, sir. Thank you. There is a quoting by our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam that education, imparting education is also important, and to receive the education is also obligatory upon us. So as there is a very well-known quote by Mahatma Gandhi ji that education is such an important thing that everyone should seek and gather knowledge. Education is not only learning things like A, B, C, D, or this is A, R, E. Education is Education is a thing where one cultivates one's manner, characters, and their overall development. And whereas we see that the school is imparting nursery, LKG, UKG education, this is the very tender age where children learn how to behave in the society, how to grow in the society, how to interact with the people, how our manners should be. And today's children are tomorrow's youth. Tomorrow's society is depending upon the children who are today. We have to train them, and we have to look that they become a better person tomorrow. They serve the society. Not only we have to take everything from the society, but we also give it back to the society and make it a good society where murder, theft, kidnap, rape, and all other crimes should not take place. And it should be a protective place and a society where they grow up and flourish their knowledge and give back to the society. So
what children learn in the school is important, and what they learn at home is also important. We have seen many students who blame the teachers at their back. I mean, which kind of children we are growing into? The school teachers at their back, they comment on their shape, how they teach, and whatever bad things is they are influencing today's day. We have to focus on our children and make them a better person and teach them all the manners. This is the age where they learn and they become what the person they have to be tomorrow. So focus on your children. It's not only that teachers have to teach them everything in the school. It is not like that. It's not going to work like that. We have to see and we have to make sure that our children are learning and they are going to become a better person for this society. This is what I would like to share with all of you. And in this quote, what I just mentioned, imparting education is a bridge where students who are seeking the knowledge will get the knowledge. And Salman sir and madam, they are all doing a very noble job, like being busy in all the days, everyday chores and all, and making the time and doing such a great contribution to the society. I hope God bless them abundance and success in this life and thank you. I thank Sakshi madam for sharing such a beautiful thoughts, and she conveyed a powerful message to the society that it's not only the duty of teacher to teach, also the parents are responsible to do the same. Powerful, मुझे जो लगा बहुत अच्छी बात कि हर चीज़ की जिम्मेदारी टीचर्स की नहीं होती। जैसे बच्चों के जो पहली टीचर है वो उसकी माँ है, वो उसकी मदर है। 24 घंटे में से आपका बच्चा टीचर के पास 6 से 8 घंटे होता है। अगर आप 24 आवर्स से 8 घंटा निकालेंगे तो बचा 16 आवर्स, 16 घंटे आपके पास है। तो टीचर की जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उससे कई बड़ी जिम्मेदारी जो है वो उसके पेरेंट्स की होती है। तो दैट वाज पावरफुल मैसेज ऑफ टुडेज इवनिंग फ्रॉम साक्षी मैडम। I heartily thank Sakshi for sharing such a grateful thought. Now I would like to call Ayesha Jamadar madam and come here and share her experience and give some again a powerful message to our society. नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम आयशा जमादार है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ सलमान सर और उनके तमाम असातिज़ा उन्होंने मुझे आज इस 10th एनिवर्सरी में उनके आने के लिए इनवाइट किया। और मैं दाद देना चाहूँगी उनकी इन एफर्ट्स का जो वो कर रहे हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जो अपना इतना कुछ देते हैं सोसाइटी के लिए और इतनी एफर्ट्स लगाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने के लिए। मैं माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा गला दूँगा। और ये जो एजुकेशन का फील्ड है वो बहुत कीमती फील्ड है। ये जो इल्म है वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है जो कोई चोरी नहीं कर सकता और जो बांटने से कभी ख़त्म नहीं होता है। इल्म की वजह से लोग ऐसे मकाम पाते हैं और इतनी तरक्की करते हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आए हुए तमाम लोग अपने बच्चों को आला से आला इल्म अता फरमाएं और उनकी तरबियत में बहुत ध्यान दें। हमारे सर सलमान सर और उनके तमाम असातिज़ा गए 10 साल से यहाँ पे एफर्ट्स कर रहे हैं। उनकी हौसला अफजाई करें, उनका साथ दें और हम भी इंशाअल्लाह ज़रूर इनके साथ इनकी जो प्रोग्रेस है इस टाइम
इंस्टीट्यूट को बढ़ाने के लिए वो ज़रूर करेंगे। हमारी काम जो है, जैसे कि ऑलरेडी आपने वीडियो में देखा होगा कि वो एजुकेशन में पीछे हैं, ऐसे रेशियोज़ हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमको एफर्ट्स करने पड़ेंगे और उन रेशियोज़ को चेंज करना पड़ेगा और हर एक बच्चा हमारा एजुकेटेड बने, कामयाब बने, यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए। हमारे कौम का नाम रोशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने कौम के लिए कंट्रीब्यूट करें, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने और ऐसे प्रोफेशंस में आए जहां हमारा नाम रोशन हो। शुक्रिया। है आयशा जमादार मैडम जो अपने तासुरात पेश कर रहे थे और मैं तहे दिल से इनका शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला और हमारे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को मैसेज दिया बच्चों की परवरिश कैसे करें। थैंक यू वेरी मच मैडम। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर ऑर्गेनाइजर्स to present the token of love. Thank you very much, Aisha Madam, for joining this auspicious moment. मैं तमाम जितने भी गेस्ट आए हैं, प्राइम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्राइम नर्सरी इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्राइम एकेडमी की तरफ से तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन कमिंग डेज whenever our institute invites you, maybe for workshop, maybe for some kind of training, some kind of parents meeting, I hope you will attend the same and make successful one like we made today.